Good evening, everyone. Uh, so, first of all, thank you, UPSC Time, for having me here, giving me this opportunity. And I think this is a great platform in order to interact with aspirants and anyone who needs help preparing for the civil service exam. और सबसे पहले before we start, if someone can confirm if I'm audible, if everything is clear, then we can have a go ahead. I'll wait until then. Sure, thank you so much. So I've gotten the confirmation. Uh, so, uh, so again, very good evening, everyone. Welcome to this session. I'll start with a brief introduction. My name is Vishnu Priya. I belong to Thrissur district from Kerala, and I have secured an All India rank of 149 in the Civil Service Exam 2025. Uh, Regarding my graduation and my initial studies, because my father was an officer in the Indian Air Force, I've done my schooling from mostly Kendriya Vidyalayas all over India. So almost 7 states may I have studied. And it has given me an early exposure to government service. So I think that is the starting of my inclination towards the civil service exam. Or after that, I went ahead to pursue my bachelor's and my master's in physics from Amrita University in Coimbatore. And graduation मैंने 2022 में finish किया अपना. And after that, since that year, I started preparing for the civil service exam. And 2023 में I gave my first attempt, and 25 was my third attempt. So it was the first time uh, that yes, yes, you can. I can see the text. Just a confirmation. Okay. So 2025 was my third attempt, or it was my first mains and my first interview. So I think because I could not clear the prelims in my first two attempts, I have learned थोड़े से key insights on what not to do and what to do with respect to preparation. And I think it's good. It's a great opportunity that I can share those insights with you so that आप सब भी benefit करें. First of all, थोड़ा सा brief I would like to give about my strategy for prelims, mains and interview. क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है. तो स्टार्टिंग फॉर माय प्रीलिम्स, आई थिंक सबसे पहले व्हाट आई डिड वाज आई वेंट थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स. कुछ 8 या 9 स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं. I'll just give a brief about the standard books that I followed. Polity के लिए it was M. Lakshmikant, Indian Polity. For economy it was Indian Economy by Ramesh Singh. एंड आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इकोनॉमी उठाते हैं, इकोनॉमी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी हमेशा लेटेस्ट एडिशंस यूज़ कीजिए. डोंट गो फॉर दी ओल्ड एडिशंस, क्योंकि आपको अप टू डेट रहना है, करंट रहना है. तो दैट वाज माय सोर्स फॉर इकोनॉमी, एंड ऑब्वियसली द एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमी का, which is the old NCERT. That is my source for economy. For geography, I completed the NCERTs. Again, मैंने self study से prepare किया था. I did not go for a coaching per se. So, and because I was from the science background, it was a bit tough for me in order to catch up with the humanities subjects. तो इसलिए कुछ ऐसे topics थे, especially geography, economy वगैरह में, कि that were very hard for me to understand initially, in the initial stages, because I had forgotten also what I had learned in school. इसलिए I had to pick up NCERTs from lower classes, for example, the 8th standard, 9th standard NCERTs, to read some basic concepts. इसलिए for humanities subjects, I started reading from 6th standard NCERT onwards. लेकिन by my second attempt, third attempt, I had gotten a fair idea about the syllabus. So I started only reading the 11th and 12th NCERTs, because वहीं से questions ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में. Now history के लिए I again read the NCERTs only. NCERT में बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा is there for ancient and medieval. और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम यूजुअली यूज़ करते हैं. आई ऑल्सो डिड दैट. और मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ही थी. So that there also Spectrum helped as a standard book.
तो दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड, दीज वर माय स्टैंडर्ड सोर्सेज। अदर दैन दिस बाकी भी बहुत सारा सिलेबस होता है, बाकी बहुत टॉपिक्स होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, डिफेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा इज ऑल्सो आस्क्ड। तो उसके लिए आई डिड नॉट फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक। एनवायरनमेंट के लिए भी आई डिड नॉट फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक। उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका नेचर ज़्यादातर डायनामिक होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, इसलिए आई फॉलोड करंट अफेयर्स मैगजीन्स। मैंने पर्सनली PT 365 यूज़ की थी, विशन IAS की। नाउ वंस मैंने अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स कर लिए थे, आई वेंट फॉर मल्टीपल रिविजन्स of the same standard books again and again for all my attempts, for all my 3 attempts. I think I read Lakshmikant वगैरह 10 to 12 times I've revised, क्योंकि उसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। I knew this. I did not diversify my sources. यही जो 8-9 बुक्स हैं जो अभी मैंने बताया आपको, वही मैंने किया बार बार। सो दैट हेल्प्स, क्योंकि उससे क्लैरिटी बिल्ड होती है एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो बेटर ईच टाइम यू रीड। तो वंस आपका स्टैंडर्ड बुक्स सेट हो जाता है, नेक्स्ट कम्स इन प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है। प्रीलिम्स में आई फोकस्ड ऑलमोस्ट टू हिट 70 और 80 पेपर्स पर अटेम्प्ट, और आई यूज टू प्रैक्टिस एवरी डे, वेदर इट बी सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। तो उसमें से प्रैक्टिस एंड देन कॉन्स्टेंट फीडबैक्स ऑन दीज टेस्ट with respect to analysis of the PYQs helps। जो तीनों स्टेजेस में, आई थिंक एक्सेप्ट इंटरव्यू, आई थिंक जो प्रीलिम्स और मेंस में PYQs बहुत हैंडी होते हैं, क्योंकि PYQs में से आपको पता चल जाता है कि UPSC का फोकस एरिया कौन सा है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइसोलेट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बेस्ट सोर्स फॉर दैट इज PYQs। तो I did multiple revisions and I used to solve the PYQs again and again. So that is where I think revision, spaced revision and practice is what is essential to clear prelims. That was my strategy. And when I finally cleared prelims, coming to mains, उसमें जो strategy मैंने follow की, that was again based on the same takeaway that PYQs are really important. PYQs में again mains में there is always some topics which have to be pre-prepared. आप एग्जाम में जाके you cannot generate points या फिर data और content आप उस spot पे आप build नहीं कर सकते. You have to be pre-prepared about some topics which are already the focus areas of UPSC. For example, if I can say in GS1, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोसाइटी में वुमेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से डिजास्टर्स पूछे जा रहे हैं, और यू हैव टू हैव अ डेटा बैंक और स्पेसिफिक नोट्स, स्पेसिफिक डायग्राम्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड कंटेंट फॉर ईच ऑफ द डिजास्टर्स। तो ऐसे करके इफ यू एनालाइज द PYQs, इवन इफ यू टॉक टू योर मेंटर्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि की एरियाज क्या क्या है, फोकस एरियाज क्या क्या है व्हेन इट कम्स टू मेंस। एंड देन यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स। आई यूज्ड टू हैव माय ओन सेल्फ रिटन नोट्स। मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, डिजिटल नोट्स भी थे, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फेल्ट इज मोर कन्वीनियंट एट दैट टाइम। In my first attempt, I used handwritten notes. By my third and second attempt, I mostly made it digital. और इसमें से क्या the benefit that happens because of this is that आपके, because it is handwritten और आपने खुद ये लिखा है, it's easy to remember it, it's easier to recall it, क्योंकि आपने खुद सर्च किया है और आपने अपने हाथ से लिखा है, तो it becomes all the more easy in order to revise it, right? तो ऐसे करके I did my mains. Again, मेंस में a very important aspect comes in with respect to practice. तो आपको डेली आंसर्स लिखना है। आई यूज टू राइट आंसर्स डेली, नॉट बिफोर प्रीलिम्स बट आफ्टर प्रीलिम्स। जो गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जो गैप होता है, उसमें हर दिन आई यूज टू राइट 5 to 6 आंसर्स विथ अ सेट टाइम लिमिट। तो उससे क्या होता है, आपको फेयर आइडिया मिल जाता है, एक मसल मेमोरी बन जाती है कि दिस इज द स्पीड दैट आई नीड टू कैच, एंड उस स्पीड के अंतर्गत आई हैव टू ब्रिंग इन क्वालिटी कंटेंट सो दैट आई कैन हैव अ गुड आंसर। ऑलराइट, तो जब आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, आप एक मसल मेमोरी बिल्ड करते हैं, आपका कंटेंट भी पॉलिश होते जाता है, आप नोट्स रिवाइज करते हैं और उसी नोट्स को आप आंसर्स में लाने की कोशिश करिए। तो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माय मेंस। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था,
And you might be wondering कि I had my physics as my optional, but I chose history. That was mainly because history ऐसा एक subject है जो again बहुत सारे पेपर्स में काम आता है. फॉर एग्जाम्पल जो एसए पेपर है उसमें हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स रेडिली यूज किए जाते हैं. आई हैड यूज देम. देन GS1 ऑफ कोर्स हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया देयर. उसके बाद जो ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के लिए. जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, जो सपोर्ट है, टेस्ट सीरीज है, फीडबैक है, ये सब बहुत रेडिली अवेलेबल है, वेर एज आई कुड नॉट फाइंड दैट फॉर फिजिक्स. तो इसलिए आई डिसाइडेड हिस्ट्री एंड आई थिंक इट वाज अ राइट चॉइस बिकॉज आई कुड स्कोर फेयरली देयर. अगेन फॉर हिस्ट्री के लिए दोस्त हु आर हैविंग हिस्ट्री एज देयर ऑप्शनल, उनके लिए ब्रीफ में आई विल कॉन्टैक्ट, आई जस्ट टेल माई स्ट्रैटेजी व्हाट आई यूज्ड. तो आई यूज्ड अ साइट कॉल्ड सेल्फ स्टडी हिस्ट्री. उसमें से आई मेड माई ओन हैंड रिटन नोट्स जो अगेन इट्स गिवन इन अ स्टोरी फॉर्मेट, सो यू डोंट हैव टू सब जो सारे सेंटेंसेस हैं आप उसको वर्बैटिम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी डिमांडिंग टास्क एंड हिस्ट्री हैज अ वास्ट सिलेबस. तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप सब पूरे नोट्स को आप उसमें से पढ़ें बिकॉज इट्स नॉट रिविजन रेडी. तो टू मेक माई नोट्स रिविजन रेडी आई मेड माई ओन नोट्स. एंड फाइनली बिफोर माई मेन्स जो 69 डेज जो मुझे मिले थे उसमें आई अगेन मेड कीवर्ड्स नोट्स. जो मेरे को पता था कि आई वेंट थ्रू द PYQs. PYQs हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर रिपीटेडली आस्क्ड. So what I did was I made notes for the PYQs. So for each PYQ I had a list of कोई कोट्स यूज करने हैं आंसर में, या फिर कोई डायग्राम यूज करना है, फ्लो चार्ट यूज करना है, जो कीवर्ड्स लाने हैं आंसर में. आई ऑलरेडी न्यू इट, इसलिए एग्जाम में जाके आई डिड नॉट हैव अ सरप्राइज कि यार ये कहाँ से पूछ लिया. तो दैट नेवर हैपेंड. आई न्यू कि इस जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं और दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी. तो उसके लिए दैट इज वेयर टॉपर्स कॉपीज कम इन हैंडी. जब भी आपको डाउट आता है कभी भी किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में कि मेंस, स्पेशली मेंस में, कि आपको क्या किस टाइप में आंसर लिखना है, द बेस्ट सोर्स इज टॉपर्स कॉपी. क्योंकि ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, कि इन लोगों ने तो क्लियर किया ही है, ये तो हमको पता ही है. तो you can always go and look at these answers and you can find out कि इन्होंने ऐसा क्या किया है that worked for them. जब आप मेंस का कोई आंसर टॉपर का कोई रीड करते हैं तो what I used to notice is कि इन लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, कंक्लूजन में have they brought something different. क्या हर क्वेश्चन में इन लोगों ने कुछ डायग्राम या फिर कॉन्सेप्ट्स, फ्लो चार्ट्स, कुछ भी एडिशनल कंटेंट हैव दे पम्प्ड इन. जैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हमको पता है, जिनने मेंस का आंसर राइटिंग का कोई भी कोर्स किया हो सबको डायरेक्टिव वर्ड्स के बारे में पता होता है कि बहुत टाइप में क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी. एग्जामिन, एनालाइज, इलैबोरेट, तो डिस्कस, ये सब कीवर्ड्स डायरेक्टिव वर्ड्स हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टिव वर्ड्स आपसे डिमांड इज डिफरेंट, आपसे एक्सपेक्टेड बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो वंस आप क्वेश्चन का डिमांड अंडरस्टैंड करें, तो टॉपर्स ने कैसे डिमांड को पकड़ा है, उन्हें क्वेश्चन को ब्रेक कैसे किया है, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन को एड्रेस किया है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन विद इन दैट स्पेसिफिक पार्ट उन्होंने अपना पॉइंट प्रेजेंट कैसे किया है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए मेंस रिवॉर्ड्स यू. इफ यू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट देयर. तो उन लोगों ने कितने सेंटेंस में उनका पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है. जैसे कुछ टॉपर्स है जो चार पांच पैराग्राफ फॉर्मेट में भी आंसर लिखते हैं, कुछ टॉपर्स है जो बुलेट पॉइंट में लिखते हैं. बोथ वर्क्स, आई हैव सीन बोथ वर्क. लेकिन आपका एज अ पर्सन यू विल हैव योर ओन इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी. आपका अपना आइडिया रहता है कि मेरे लिए क्या फंक्शन करेगा, मेरे लिए क्या वर्क करेगा. तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आप आंसर कैसे अपना लिखेंगे. तो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माय मेंस. Coming to my interview, I think I'll just brief about this. उसके बाद I'll answer the comment section, so please wait. क्योंकि ये थोड़े से important questions है जो repeatedly मेरे से पूछे जाते हैं, तो I'm definitely coming to the comment section. So sorry for that. हाँ, तो for my interview I had Sujata Chaturvedi ma'am's board and I have scored 215 marks in my interview.
or I think there are many key insights that I have picked up. I don't consider I was very good in the initial stages of my interview preparation, लेकिन after that बहुत सारे ऐसे insights मेरे mentors से, civil servant से मिले, which I had inculcated into my interview preparation, which helped me score well in my interview. तो पहले तो इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी बताया जाए तो आई डिड माई डैफ वेरी वेरी वेल, एंड जो 50% क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे इन द इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू आल्सो वर फ्रॉम माय डैफ. तो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड चैट जीपीटी वेरी एक्सटेंसिवली. I had isolated some 30 to 40 keywords from my DAF, starting from my name, my school, district, ऐसे करके state, and उसमें से I had generated questions using ChatGPT. तो what I did was ChatGPT में जाके I gave a prompt कि ये मेरा नाम है, इसमें से क्या क्या questions UPSC में पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, and I got a list of questions, and then I had to prompt कि historically tweak the questions historical significance के अनुसार. So ऐसे करके I prompted, and when I got a set of good number of questions regarding my name, I considered myself well prepared. So like that, for each keyword in my DAF, I had a Word file जिसमें I had questions and answers, and I think that builds clarity, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं डैप से, तो कुछ भी आपसे पूछा जाए आप कभी परप्लेक्स नहीं होते, आप सरप्राइज नहीं होते, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. इवन इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, कुछ तो आइडिया लग ही जाता है कि यार ये तो बोल ही सकते. तो दैट इज हाउ आई प्रिपेयर्ड माई डैप. Nextly, current affairs becomes very, very important. So newspaper reading is a very important aspect when it comes to interview prep. So I had read almost 2 to 3 newspapers depending on the day. If I used to get time, I used to read 3 newspapers. If not, I used to stop at 1. Lekin whatever said and done, newspapers are very important. Again, with respect to interview preparation, one thing that comes in handy is peer discussions. So I used to have a group of 15 people. We used to sit every day and discuss important topics from current affairs जो relevant हमको लगे, और हमारे जो 15 लोग हैं उनके डैफ में जो keywords हैं उसके अकॉर्डिंगली करंट अफेयर्स में से हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है. दिस वी हैड अ वेरी क्लियर आइडिया, and we used to discuss among each other. And in the last 15 minutes of our meeting, which used to run some 3 hours or something, we used to discuss, we used to have a peer mock where all the 14 people would ask one of us questions from our DAF and randomly from the current affairs. So usme se what I gained was speaking practice. I used to speak daily. So this helped. Other than this, a senior bureaucrat had interacted with me during my interview prep. तो दैट आई थिंक आई वुड वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि रिगार्डलेस आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है या फिर नहीं इस साल का, इफ यू आर गिविंग एन अटेम्प्ट, आई एम होपिंग दैट जो लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं दे हैव टू गिव एन अटेम्प्ट ऑफ सीएससी. तो देयर आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस दिस स्टार्टिंग टुडे, आई कैन अश्योर यू दैट आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेंगे इफ यू डू दिस एवरी डे. वन थिंग इज दैट जब आप न्यूज़पेपर, आप सब न्यूज़पेपर रीड ही कर रहे होंगे, जो हिंदू आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं उसमें से हर दिन कोई एक एडिटोरियल सॉरी फॉर दैट, एक कोई एडिटोरियल उठाइए and read that aloud, even if it's not an editorial, it can be a simple article also, but it needs to be long. और आप उसको उठा के you have to read it aloud, मन में नहीं, aloud you have to read. So that you get the main aspect of doing this is you have to get used to listening to your own voice, and अच्छे से पंक्चुएशन लगा के स्लोली रीड कीजिए जब आप आर्टिकल न्यूज़पेपर से रीड कर रहे हैं, तो उसमें से यू गेट यूज टू लिसनिंग टू योर ओन वॉइस, और आपको आइडिया लग जाता है कि यार आप फंबल तो नहीं कर रहे हैं, आप पंक्चुएशन तो लगा रहे हैं ना ठीक से. तो ये सब आप हर दिन 10 मिनट्स लगते हैं इस एक्सरसाइज को करने में. वंस यू रीड दिस अलाउड, पुट द न्यूज़पेपर असाइड, और आप मिरर के सामने ट्राई टू रिकॉल व्हाट ऑल यू लर्नड. सो व्हेन यू एंड यू हैव टू से इट एज एन एक्सटेम्परी, कि जो भी आपने आर्टिकल में पढ़ा है, इंक्लूडिंग डेटा है, पर्सपेक्टिव हो गया, या फिर कुछ आइडिया आपने न्यू उसमें देख लिया, या फिर कोई कीवर्ड्स न्यू आपने ऑब्जर्व किए, try to bring that in your speech. Look at yourself in the mirror and try to speak.
or represent that article. You can also at the end add your own perspective. If you think you're a public speaker, you can also add your own perspective. इससे क्या होता है, again you're looking at yourself speak in the mirror, you know your expressions की क्या क्या आ रहे हैं, मेरे face पे क्या क्या expressions आ रहे हैं. You get used to listening to yourself speak and looking at yourself speak. उससे बहुत confidence मिलता है. Plus when you are reading the article in order to reproduce it, कि आपके माइंड में ये रहता है कि यार इसके बाद इमीडिएटली मेरे को ये रिप्रोड्यूस करना है या फिर इसके बारे में आई हैव टू स्पीक. तो व्हेन यू हैव दैट इन माइंड, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, आप फोकस करके रीड करते हैं. और कभी कभार जो डाटा आप रीड करते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया आर्टिकल में, ये आपको याद रहता है क्योंकि आपने इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग आपने वो रिकलेक्ट किया है और रिप्रोड्यूस किया है. So this helps you in long term. And if you do this exercise starting today, I assure you आप 27 में रह रहे attempt या फिर 26 interview तक जाएंगे. This will benefit you a lot. आप already interview ready होंगे by the time you read that stage. So this was my basic introduction and my strategy with respect to all the 3 stages. And I think I have time until 7:30 in order to cover some more questions that have been given to me. उसके बाद we'll go to the comment section. जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पूछे हैं सबका आंसर मैं करूँगी. मे बी नेक्स्ट 5 मिनट्स आई टेक मोर. फर्स्ट थिंग, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या कोचिंग नेसेसरी होता है सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने के लिए? इफ़ आई कैन क्लियर थ्रू सेल्फ स्टडी, मैंने किसी टाइप का कोचिंग नहीं लिया है. आई ओनली कवर्ड द प्राइम जो सिलेबस है. I did not go for a prime coaching anywhere. I covered all the syllabus by myself. I prepared my history optional by myself. So I have not attended any coaching classes. So if I can do that, you can also do that. So that is what I will suggest. Lekin it depends on you. I am a person who I had a peer. I had my sister preparing with me. So we were preparing as a group. So there was someone to discuss with. लेकिन अगर आप अकेले हैं घर पे एंड इफ यू आर मोर कंफ्यूज्ड, इफ यू वांट पीयर ग्रुप, इट वुड बी बेटर इफ यू गो फॉर कोचिंग. दैट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली. लेकिन द आंसर टू क्या कोचिंग के बिना हो सकता है, द आंसर इज यस. आई हैड गॉन फॉर कोचिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज के लिए जो फीडबैक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको देते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है. फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो आई यूज्ड पैनल मॉक्स विच द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यूज्ड टू गिव. उसके अलावा लेकिन टू अंडरस्टैंड एंड डू माई बेसिक नोट्स एंड माई स्टडी, आई डिड नॉट गो फॉर एनी कोचिंग. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड वांट टू से. अगेन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स पूछते हैं, आई थिंक कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने पूछा है कि रिविजन कैसे करना है. रिविजन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दो CSE आई डू नॉट consider it is about rote memorization. It's all a lot about understanding and analysis. लेकिन जो कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, आपको रिकॉल करना है, इसलिए रिविजन कम्स इन हैंडी. तो रिविजन के लिए आई वुड सजेस्ट कि स्पेस्ड रिविजन करने की कोशिश कीजिए. जैसे आपने जनवरी में कुछ पढ़ा, आपने सपोज यू कंप्लीटेड अ सब्जेक्ट, उसके बाद फेब और मार्च में आप कोई और सब्जेक्ट कवर करें, अप्रैल में अगेन कम बैक टू दैट सब्जेक्ट विच यू पिक्ड अप इन जनवरी, राइट. तो स्पेस्ड रिविजन से क्या होता है, you are currently, you're constantly in touch with the concepts, and each time you read the book again, something new pops up जो आपने पहले notice नहीं किया है. And जो जब आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं, whether it be mains, whether it be prelims, I have always observed a trend among aspirants, and I also used to do this in my first 2 attempts की. जैसे 2 वीक्स 2 वीक्स में मैंने रिवाइज किया कोई सब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी उठा लो. ज्योग्राफी आई स्टडीड द एंटायर सिलेबस, रिविजन करके आई यूज्ड टू गिव द टेस्ट. तो लेटर ऑन आई अंडरस्टूड दैट दैट्स वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी टू यूज, क्योंकि यूपीएससी में इतना सारा वास्ट तो सिलेबस है, आप सारा कुछ एग्जाम के 2 वीक पहले आप नहीं पढ़ सकते. इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो कोई 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे या फिर 2-3 टॉपिक्स होंगे जो आप एग्जाम के 2-3 हफ्ते पहले करेंगे, बाकी आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लाइक इट्स नॉर्मल. तो व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे आपने इस हफ्ते में हिस्ट्री पढ़ा है, नेवर टेक हिस्ट्री का टेस्ट ऑन सैटरडे एंड संडे. टेक सम अदर सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया. तो उससे क्या होता है, इट ऑलवेज गिव्स यू अ क्लैरिटी कि आप अपनी मेमोरी पे बेस नहीं पेपर को अटेम्प्ट करें या फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे.
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में इट डज नॉट टेस्ट योर मेमोरी, इट टेस्ट योर लॉजिक, इट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट कम्स फ्रॉम अ बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज. तो फाउंडेशनल नॉलेज अगर आपका स्ट्रांग है तो आप यू हैव टू कम अप विद सम ट्रेंड्स या फिर कुछ लॉजिक. Something needs to come up in your head from what you have learned that can be applied to crack this question or crack that particular paper. तो if you are directly going into यार मैंने क्या पढ़ा था, I'll try to recall it, तो that becomes a wrong strategy क्योंकि actual paper में you can never recall it. So this is how I used to prioritize my revision कि अगर if I'm taking a geography test on Sunday, I would never put geography there. In that week, before that week, I would put history or economy or something. तो ऐसे करके I used to do spaced revision, monthly and weekly revision depending on the test that I'm going to take. So this is how I used to revise. Another question that many aspirants still ask me even after this year's prelims is about Plan B. तो Plan B, I am someone who would always say Plan B को ready रखिए, क्योंकि जो CSE एग्जाम है इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आप एक वेरी वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हो सकते हैं, आप यू कैन हैव योर सिलेबस कंप्लीटेड, यू कैन बी अप टू डेट विथ योर प्रैक्टिस, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि यू मिस इट बाय अ फ्यू मार्क्स. जो मार्जिन है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज सो हाई, द मार्जिन ऑल्सो इज वेरी लो. तो इवन इफ यू लूज इट फॉर 0.5 मार्क्स, दैट डजंट प्रूव कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो या फिर आप इनकेपेबल हो. लेकिन प्लान बी से क्या होता है कि देर इज ऑलवेज अ कॉन्फिडेंस कि यार कुछ तो है फॉल बैक करने के लिए. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज इन माय डेली शेड्यूल, आई यूज्ड टू स्टडी 8 hours फॉर सिविल सर्विस because I did not clear prelims in my first 2 attempts. I had a plan B ready. तो what I used to do was जो गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, जैसे आरबीआई का एग्जाम आता है, बैंक्स आप सब दे ही रहे होंगे, वो सब एसएससी सीजीएल हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर. Even if someone is interested in academics, they can go for GATE also. So I used to give all these kind of government exams, and MBA exams also I've attempted. Because so daily 2 hours, whichever is the coming exam, जो upcoming exam है, उसके लिए I used to devote 2 hours daily in order to practice the specific question paper of that exam. There are some websites जैसे iExam भी होता है, Unacademy and Textbook जैसे कुछ अच्छे websites हैं online, तो उसको भी आप यूज़ करके घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड दिस विल हेल्प यू क्रैक दीज एग्जाम्स व्हेन दे कम. तो वंस द एग्जाम गेट्स क्रैक्ड या फिर आप कुछ और बैकअप ऑप्शन आपका सॉलिड हो जाता है, आपको और भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार अब तो सिविल सर्विस हम उसमें बैठ के, जॉब में बैठ के भी प्रिपेयर कर सकते हैं. That but all of these decisions depend on your financial background also, your family, how they support you and everything. So that is up to you to take. लेकिन plan B के दौरान, this is my take, because I always used to consider plan B as very important. I think we have done solid half an hour depending to solve important questions that I feel should be answered. Now I go to the comment section, try to answer some. First of all, thank you जो लोग congratulations बोल रहे हैं, thank you so much. Someone said should you make notes for Lakshmikant? जो लक्ष्मीकांत जो टेक्स्ट बुक है, इट्स अ वेरी वास्ट बुक, और व्हेन यू रीड द बुक आपको ये पता चलेगा कि हर सेंटेंस में से क्वेश्चन बनाया जा सकता है. जैसे आप एक सेंटेंस रीड कर रहे हो, दैट कैन टर्न इनटू अ क्वेश्चन स्टेटमेंट, राइट? तो व्हेन यू अगर आप लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स बना रहे, तो यू हैव टू रिप्रोड्यूस द एंटायर बुक. तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाइए. Again, there are certain areas from Lakshmikant that can be made into notes. जैसे for example जो amendments हम पढ़ते हैं, उसमें से जैसे कुछ important amendments है, जैसे 42nd, 44th, 86, 91, 73, 74. So ऐसे करके आप अपने short notes for recall, for revision आप बना सकते हैं, लेकिन do not make notes of the entire textbook, क्योंकि उससे बहुत time waste होगा and it will not directly benefit you. So I would not suggest कि आप लक्ष्मीकांत के notes बनाएं. All right. Someone's talking about history optional.
आई थिंक जो हिस्ट्री का पेपर था इस साल का, अच्छा, आई थिंक द क्वेश्चन इज अबाउट प्रीलिम्स, इट्स नॉट क्लियर कि हिस्ट्री ऑप्शनल की बात की जा रही है या फिर प्रीलिम्स की। तो विच एवर इट इज, आई थिंक जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एज ऑफ नाउ व्हाट आई वुड वांट टू से इज आप और भी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करके आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि अगर फैक्चुअली डेप्थ में क्वेश्चन जा रहा है देन देयर इज नो एंडिंग कि आप जैसे आई थिंक इन दिस टाइम्स प्रीलिम्स ऋग्वेदा या फिर अथर्ववेदा से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ यू कैन नॉट रीड द एंटायर डॉक्यूमेंट, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो आप अपना प्रिपरेशन हमेशा स्टैंडर्ड रखिए। आई वुड सजेस्ट कि आप जो बेसिक सोर्सेस है, जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स है, उसको अच्छे से कीजिए। देन अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक ट्राई टू अटेंड द क्वेश्चन। अगर आपसे नहीं हो रहा है, स्किप द क्वेश्चन। डू नॉट बी वेरी रिजिड अबाउट कि यार हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है तो हमेशा आई हैव टू अटेंड ऑल द क्वेश्चन। इस तरीके का रिजिडिटी नहीं लाइएगा। However, I would suggest कि if time permits, you can have discussion among your friends कि क्या क्या sources लोग use कर रहे हैं, and then you can have a plan कि यार these are some sources that can be doable. Again, if you're in your third attempt or your fourth attempt, you can little bit go and diversify your sources. लेकिन that is not the first strategy that has to be adopted. Stick to the standard books, revise the same content, and उससे prelims हो जाना चाहिए. There are always some questions in the exam paper that are doable, that are based on PYQ patterns. So focus on those questions more than questions that are unattemptable and out of syllabus. क्योंकि बाउंसर्स तो यूपीएससी डालती है, तो उसमें हमको एंकर नहीं करना है इमोशनली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Revision, I think I talked about revision. Kajal is asking about prelims. So, Kajal, it's fine. Prelims was the toughest stage for me also. तो आई थिंक आप पहले तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपका प्रॉब्लम वेयर इट लाइज. यू नो, इट कुड बी एनीथिंग. आइदर इट कुड बी अ प्रॉब्लम विथ योर स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स है वो अच्छे से नहीं कवर किए होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, दैट कुड बी द रीजन. और इट कुड बी लैक ऑफ प्रैक्टिस, इट कुड बी लैक ऑफ फीडबैक, इट कुड बी रॉन्ग कि आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रॉन्गली अटेम्प्ट कर रहे, कि आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके नेगेटिव जा रहे हैं या फिर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना. तो anything could be the problem. Try to identify specific problem that you need to work on और उस पे वर्क कीजिए. Sit with your mentors, sit with your friends who are preparing. And मैंने अपना prelim strategy बता दिया, तो anyway you can reach out to me also if it is not working still. My Telegram and my Instagram is available anyway. Someone is asking about prelims and mains के बीच में जो गैप था उसमें मैंने अपना ऑप्शनल एंड जीएस कैसे बैलेंस किया. For me, जब I failed my 2023 and 24 prelims attempts, I had gotten enough time to work on my GS mains answers. So I had a fair idea about GS के mains answers कैसे लिखने हैं. But I had not focused much on my optional. तो इसलिए when I cleared prelims, I used to spend daily 2 hours only for GS, just in order to build the basic idea or basic content that is required based on important areas in the PYQs. बाकी time I used to study my optional and write optional answers, क्योंकि जो मेंस में आपका जो रैंक डिटरमिनिंग पेपर होता है दैट इज योर ऑप्शनल एंड योर एसे पेपर. तो उसमें इफ यू कैन गिव पुट सम सॉलिड वर्क, then that is what will push you into the final rank list. जो GS है, I'm not saying it's not important, लेकिन GS के बारे में आपको आइडिया लग सकता है. if you're going for a test series, you can have a mentorship, you can have a good feedback, and a lot of sources are available कि GS में आपको कैसे आंसर लिखना होता है. टॉपर कॉपीज आर अवेलेबल. तो इसलिए एंड द मार्क्स that are also being put in GS वो भी थोड़ा स्टैंडर्ड होता है. लेकिन द बेस्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो टॉप 10 रैंकर्स होते हैं या फिर टॉप 50 बोल लो, टॉप 50 और जो दोस्त हु आर इन 700 और 800 रैंक, उनका जो GS का सम टोटल है उसमें आपको ज़्यादा अंतर फर्क नहीं दिखेगा. द डिफरेंस कम्स इन सर्टेन पेपर्स सच एज ऑप्शनल पेपर, एथिक्स पेपर, ऐसे पेपर एक्सेट्रा. तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए इफ़ यू हैव टू हैव अ गुड रैंक, राइट. तो आई यूज टू स्टडी ओनली 2 hours फॉर GS एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू पुश फॉर माई ऑप्शनल. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू अगेन. आप डिपेंड्स ऑन हाउ प्रिपेयर्ड यू आर इन योर ऑप्शनल ऑलरेडी.
Okay. With respect to someone's asking about how to analyze the PYQs, it's a very important question. I think that there I would help. PYQs में से whether it be prelims or whether it be mains, first thing first आपको identify करना है कि area क्या है. ऑल राइट कि कौन से जो पूरा पॉलिटी का बुक है तो आई एम नॉट ट्राइंग टू ये आप जो कंक्लूजन करके मत लीजिएगा कि 2027 में लाइक मैम हैड सेड दिस तो मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा या फिर जाऊंगी, ये मत करना. लेकिन 20 जो आप अगर प्रीलिम्स में पॉलिटी का देखेंगे तो देर आर सर्टेन चैप्टर्स जिसमें से बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जो पहले के 10 चैप्टर्स है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, लक्ष्मीकांत का. तो दीज आर सम टॉपिक्स दैट आर रिपीटेड. लेकिन जो बैक के पीछे के चैप्टर्स है, जो नेशनल कमीशन हो गए आपके बहुत सारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेक एन आइडिया कि इस एक कोई सब्जेक्ट उठा लो, उसमें से कौन से ऐसे एरियाज है जिनमें से यूपीएससी फोकस करिए. तो आइडेंटिफाई द एरिया. नेक्स्टली वंस यू आइडेंटिफाई द एरिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने डेप्थ में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना. तो समटाइम्स इट हैपेंस कि सरफेस लेवल में से पूछ लिया, जैसे आर्टिकल 21 से जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आप देखेंगे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट टू मैरी किसके अंडर आता है. तो जिस तो कोई बेसिक न्यूज़पेपर रीड कर रहा है तो उसको भी पता चल जाता है कि आर्टिकल 21 है. तो दिस इज वेरी बेसिक. लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसमें बहुत डेप्थ में जाते हैं, जैसे करंट अफेयर्स में से कुछ एरियाज है जिनमें एक्चुअल फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई ट्रॉफी हो गया, स्पोर्ट्स का ट्रॉफी. तो ऐसे करके बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से सब्जेक्ट्स है जिसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसके अनुसार आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्टली लाइक यू वेरी राइटफुली आइडेंटिफाइड, जो क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक्स होते हैं, जैसे प्रीलिम्स का एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, तो उसमें से आपको ये पिकअप करना है कि जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो गए, या फिर जेनेरिक स्टेटमेंट्स हो गए, पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट्स हो गए, नेगेटिव फ्रेमिंग हो गया. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि लैंग्वेज का यूज कैसे यूपीएससी कर रही है. विथ रिस्पेक्ट टू मेंस, जैसे मैंने पहले कहा, डायरेक्टिव वर्ड्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टिव वर्ड, जैसे एग्जामिन है या फिर डिस्कस है, गिव मी अ सेकेंड, जो एग्जामिन है, डिस्कस है, इलैबोरेट है, एनुमरेट है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट इज बीइंग डिमांडेड ऑफ यू, आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच और टेक्निक यूज करते हैं मेंस में. तो व्हेन यू लुक एट द पीवाईक्यूज, अगेन ट्राई टू एनालाइज कि डिस्कस में टॉपर्स ने क्या किया है, एग्जामिन में टॉपर्स ने क्या लिखा है. So this is the thing that this is how you should be analyzing the PYQs. And when आप practice कर रहे हैं, आप भी ऐसे think करने का कोशिश कीजिएगा. Whenever you write the answer, try to bring in how they have used. Not to copy paste that. आपको अपना कंटेंट करना है, लेकिन some basic एक फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है. Try to pick that up. Right. I don't have a Telegram channel for history, but I'm thinking of starting one very shortly. So for sources of history, I think self-study history is the only source that I use. Other than that, there are standard books. So because I did not have a history background, I had to go through the standard books as well. तो उसमें the sources that I followed was एक तो उपिंदर सिंह मैम का बुक है, एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल तक का 10th सेंचुरी तक का उसमें कवर्ड है. उसके बाद देर आर एनसीईआरटीज, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, दैट्स व्हाट आई यूज्ड. स्पेक्ट्रम है, एंड फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन करके एक बुक होता है शेखर बंदोपाध्याय का, दैट इज व्हाट आई यूज फॉर मॉडर्न इंडिया. आई रेड दीज बुक्स प्रॉपरली. आई एम समवन हु लाइक्स रीडिंग, तो दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. So from Plassey to Partition is a very good source. Again, for world history, there are two books. एक तो Norman Lowy का book है, World History, Modern, A Brief History of Modern World. That's what the book is called, Norman Lowy. And one is by Jayanand Mathur, again, the Modern World History. So that is what I covered, two books. And again, इसमें से ये नहीं किया कि सारे pages पढ़ लिए. इसमें से ये किया कि first I went through the PYQs, what are the important areas that I should cover. एंड उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स फ्रॉम सेलेक्टेड बुक्स आई डिड स्मार्ट स्टडी किया है. इट्स नॉट दैट आई रेड द एंटायर बुक. तो अकॉर्डिंगली आप कीजिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है. ऑप्शनल में यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस अटेम्प्ट करने के लिए.
तो accordingly, what is your strong area, try to build there, build content there, and accordingly prepare depending on the PYQs. All right, so I think I did say the sources for history. I used to write answers, ma'am, you write answers in points or paragraph. I used to write answers in bullet points because that was more convenient for me because I have a science background. Thoda और summary and संक्षिप्त में लिखना is something that I had picked up very early on. So always bullet points always used to help me. लेकिन I've seen both ways. I've seen people write in paragraphs and score very well. So whatever works for you, you must adopt that. Yes, I had taken interview guidance program. Like I said, my interview strategy, one important thing that I used to do was one-on-one sessions also with mentors and bureaucrats who are already in service, and my friends who are also in service before. तो उनके साथ one-on-one discussions I used to sit, and उसमें they used to ask me questions, I used to answer. तो ऐसा करके interview guidance program होता था, and finally resulting in mock interview. लेकिन mock interview is only a final stage. आप you can never start your interview preparation with the mock, क्योंकि मॉक शुड कम एट द वेरी एंड, जब आपको लगे कि आपका डैफ प्रिपेयर्ड है, आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड है अच्छे से, आपने आंसर बोलने का तरीका फिगर आउट कर लिया है, उसके बाद फाइनल स्टेज में आपका मॉक्स आता है, तो यू हैव टू वेट अंटिल देन. One question is, ma'am, NCERT note making is important. I think मेरे perspective में again it depends from NCERT to NCERT. जो for example if आप 11th का NCERT उठाए, geography का NCERT, again जैसे पहले मैंने बोला, every sentence becomes important, right? क्योंकि हर sentence में से there is a question statement that can be asked. तो आप इसका अगर नोट बनाएंगे तो बेसिकली आपको वर्बैटिम ये कॉपी करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी हार्ड. एंड उससे क्या होता है, आपका रिविजन, आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे. आपका रिविजन जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट हो सकता था वो आपने अपने नोट्स में बनाया, एंड देन यू आर वेस्टिंग टाइम देयर, आप यू टेकिंग डबल द एफर्ट. सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऐसे एनसीईआरटीज जो है जिनमें हर सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट और सब में फैक्चुअल है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हर सेंटेंस में दिया गया है, देन डोंट मेक द नोट्स अबाउट नोट्स फॉर सच एनसीईआरटीज. लेकिन कुछ एनसीईआरटीज ऐसे हैं जिनका नोट्स बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल जो इंडियन इकोनॉमी का जो 12th का टेक्स्ट बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आप कभी देख सकते हैं कि कभी स्टोरी बना दिया है, स्टोरी भी लिखा जाता है उसमें, कभी 2-3 पेजेस तक स्टोरी होती है. तो इन दैट केस डोंट रिवाइज दैट बुक. आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि कॉन्सेप्ट्स है या फिर आइडियाज है, जो इकोनॉमी में फॉर्मूलाज आते हैं, इक्वेशंस आते हैं, तो जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है यार, ये तो पूछा जा सकता है, आप उसका शॉर्ट नोट्स बना दीजिए. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम बुक्स टू बुक. की आइडिया इज दिस, अगर आपको लगे कि हर सेंटेंस में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ framing a question, then do not make notes out of it. If it is the other way around, कि बहुत स्टोरी है, बीच में एक important concept आ गया, then make the notes of that. So that's how I used to do it. My graduation subject was physics, and college was Amrita University in Coimbatore, Amrita Vishwavidyapeetham. What's the approach difference for NCERT for prelims and mains? Basically NCERT it is an integrated approach. I think it is not different for prelims and mains. Personally I felt that NCERT is more useful for prelims क्योंकि direct question NCERT में से पूछा जा सकता है for prelims, whereas mains में it's always the perspectives that come into picture. और उसके लिए before your mains, after you clear your prelims, जो gap होता है उसमें आप उसमें NCERT रीड करने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्योंकि one thing is that NCERT is very foundational. तो उस टाइप का फाउंडेशनल नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होता है. इफ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, इट मींस दैट योर फाउंडेशनल नॉलेज इज स्ट्रॉन्ग, तो यू डोंट नीड टू गो बैक एंड रीड द एनसीईआरटी अगेन. मेंस में थोड़ा और टारगेटेड प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है. कंटेंट आप बिल्ड कीजिए, पर्सपेक्टिव आप न्यूज़पेपर से या फिर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके पर्सपेक्टिव्स लाइए अपने आंसर में. यू डोंट नीड टू गो बैक इनटू फाउंडेशनल जो नॉलेज है. तो आई डोंट थिंक मेंस
कि पहले एनसीईआरटी को सेपरेटली रीड करना है. If you have good base grip on your NCERT before your prelims, that should suffice. So that's an integrated approach with respect to the NCERTs. This is a very important question, ma'am. How to choose optional? I'm getting interested in whatever subject I'm reading, which is a very good thing, and I appreciate that. लेकिन आपको ऑप्शनल चूज करना है. What I considered is number one, it is the subject which you learn the most, है ना. तो आप अपना मैक्सिमम टाइम ऑप्शनल में स्पेंड कर रहे हैं, तो it should be a subject that interests you. तो because you have interest in everything, so it's not a big issue. लेकिन फिर भी आपको होगा कुछ तो प्रायोरिटी की, यार इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, इसमें कभी तो मन करता है, कभी नहीं लगता. तो whichever is your priority, depending on that, आप एक ऑप्शनल चूज कीजिए. नेक्स्टली आपको जो डिसाइड कर रहा है कि हर पेपर का एक अपना स्ट्रैटेजी होता है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है. जैसे हिस्ट्री का मैं बताऊं, तो इट्स अ स्टोरी फॉर्मेट. आपको जो जो भले आप पॉइंट्स में पॉइंट्स लिख रहे हैं, जो आपका आंसर है उसमें पॉइंट्स में ही लिख रहे हैं आप, लेकिन यू नीड टू ब्रिंग इन थोड़ा सा स्टोरी, थोड़ा सा इलेबोरेशन आपको करना पड़ता है. यू कैन नॉट राइट द आंसर लाइक यू राइटिंग जीएस. तो वहाँ पे इफ यू आर समवन हु डज नॉट हैव अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेज, इट बिकम्स अ टफ गेम. आप उसको नेचुरली बिल्ड नहीं कर पाते. तो उसके लिए बेस्ट सोर्सेस इज टॉपर्स कॉपी, कि आप टॉपर्स का देखिए कि वो कैसे लिख रहे हैं. अगर आप आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि यार दिस ऐसे तो मैं भी लिख सकता हूँ या फिर लिख सकती हूँ, तो यू कैन अडॉप्ट दैट. अगर आपको लगे कि यार ऐसे तो मेरे से नहीं हो पाएगा, देन डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन, क्योंकि स्कोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. अनदर थिंग दैट आई कंसिडर्ड वाज, is material readily available, is there test series that are readily available, feedback मिल सकता है, mentors available हैं कि नहीं. If you think you can go for a subject which is very unique, जिसमें ज़्यादा mentors नहीं हैं, but you have the confidence कि यार मेरे से हो सकता है, go for it, no problem. But if you don't have that confidence, go for a safe optional जहाँ पे आपको feedback and mentoring available हो, test series available हो. All right. Next thing that has to be considered is overlap. क्योंकि आपको बहुत बहुत पढ़ना है मेंस के लिए स्पेशली, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, हमेशा पढ़ते पढ़ते जा रहे हो. तो फॉर दैट हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट से अगर 4 पेपर कवर हो जा रहे हैं, जैसे आप बात कीजिए पीएसआईआर जैसे ऑप्शनल का, या फिर आई वुड से सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल का, तो जो कॉन्सेप्ट आप उसमें पढ़ते हैं, यू कैन यूज इट इन मल्टीपल पेपर्स. जैसे एसए में आप कोई एग्जांपल ला सकते हैं, आप जीएस 1 में सोसाइटी यूज कर सकते हैं, एंड 2 ऑप्शनल पेपर तो हैं ही. तो इफ यू आर स्टडीइंग पिकिंग अप एन ऑप्शनल, आप ये कंसिडर कीजिए कि कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. आप 2 घंटे दे रहे हैं, you must have an equivalent return for that particular knowledge that you're gaining in that 2 hours. अगर आप दिन में 8 घंटे आप ऑप्शनल को दे रहे हैं एंड बस 2 पेपर में उसका यूज आ रहा है, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो. तो ये भी आप कंसिडर करिए व्हेन यू आर चूजिंग योर ऑप्शनल. ठीक है. Someone's asking, ma'am, complete your BA by August. I'll appear for exam in 27. So should I do MA or prepare for UPSC full time? It actually depends on you. आपका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल, जो फिनेंशियल सपोर्ट, अगर आप MA कर सकते हैं, अभी ही कर सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट. क्योंकि बाद में गोइंग फॉर एन MA वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार गैप आ गया तो गैप आ जाता है. उसके बाद इफ यू हैव एन MA, देयर आर बेटर जॉब ऑप्शंस अवेलेबल. बट इफ यू थिंक दैट MA अभी वायबल नहीं है, और दिस इज द ओनली टाइम यू कैन सीरियसली गो फॉर UPSC, क्योंकि वंस यू वेट फॉर MA इट विल बी हार्डर फॉर यू टू गो. एज का भी फैक्टर होता है, घर पे भी अपने डिमांड्स, प्रायोरिटीज शिफ्ट होते रहते हैं. इफ यू थिंक MA के बाद आप UPSC में जाएंगे, तो UPSC छोड़ना पड़ेगा, 3 अटेम्प्ट या फिर 4 अटेम्प्ट के बाद छोड़ना पड़ जाएगा. देन अकॉर्डिंगली गिव योर अटेम्प्ट नाउ. इट डिपेंड्स ऑन यू, योर situations, your family conditions. So that take a practical decision, and always have a plan B also. That I would say. Prelims or mains note should be made differently or not. Yes,
प्रीलिम्स और मेंस में आई हैड मेड सेपरेट नोट्स, क्योंकि बोथ डिमांड डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ यू, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स में इट्स मोर अबाउट, देखो आपके सामने ऑलरेडी है, स्टेटमेंट है, आपको बस ये डिसाइड करना है कि ये गलत है कि सही है ना। लेकिन मेंस में दैट इज नॉट द गेम। मेंस में आपको ब्लैंक शीट दिया जाता है, जो भी आप लिखते हैं आपके मेमोरी से, आपके अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव योर ओन नोट्स, सेपरेट PYQ बेस्ड कंटेंट जो आपने सर्च किया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऑथेंटिक लगे उसमें से आपने हैंड पिक्ड बनाया है अपने नोट्स, वो मेंस में ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए जो नोट्स आप बनाते हैं वो ज़्यादा रिविजन बेसिस में होता है कि यार ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें से थोड़ा और रिविजन ईजी हो जाए, इसलिए आई विल मेक द नोट्स, है ना। तो दोनों का पर्पस बहुत डिफरेंट है, इसलिए आई हैड मेड सेपरेट नोट्स। My attempt is in 2028. Should I make current affairs notes? Yeah, one thing that I think for current affairs is that it's very dynamic. And जो 365 days हैं year में, सब हर दिन कुछ ना कुछ new keeps happening, है ना। तो if you make notes out of current affairs, it's going to be very hard to revise it, है ना। तो आपको notes किस चीज़ का बनाना है, whatever you can revise, है ना। तो वॉट एवर वी डू, जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैड मेड शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर्स, देन लेटर ऑन आई अंडरस्टूड दैट इट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, उसको कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिफोर द एग्जाम आई कुड नॉट रिवाइज इट, आई डिड नॉट इवन रिमेंबर कि कौन सा कंटेंट कहाँ था। तो यू शुड नॉट नेवर डू दैट। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको रिविजन रेडी पॉसिबल वे में रखिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, मेक श्योर यू कैन रिवाइज इट। उसका लेंथ कभी इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि आप भूल जाए कि यार ये मैंने कहाँ लिखा था, या फिर रिविजन हार्ड हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स ऑलरेडी जो होते हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं तो उसमें से होता है, फिर PT365 आई सेड इट्स रेडीली अवेलेबल, विषय नहीं है इसका, कोई एक करंट अफेयर्स का सोर्स उठाइए, उसमें से यू कैन, उसमें आप हाईलाइट करके उसमें से पढ़िए। इफ यू थिंक देर आर सर्टेन एडिशनल थिंग्स दैट नीड्स टू बी एडेड इन दोज नोट्स, उसको गूगल करके ऐड कर लीजिएगा, या फिर कोई और सोर्स है उसमें से पढ़ के इसमें ऐड कर लीजिएगा, या फिर डिजिटली इफ यू हैव टू ऐड समथिंग, एडिट करके ऐड कर लो। न्यूज़पेपर में से आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड्स और अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए यूज करो। अगेन इफ यू थिंक उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस न्यूज़पेपर से नोट बनाना या फिर करंट अफेयर्स का खुद का नोट बनाना, आई डोंट थिंक उसमें दैट इज रिविजन रेडी, एंड प्रैक्टिकली इट बिकम्स वेरी वेरी टफ। But then again, this is my perspective from my own experience. If you think it's important, you can go ahead and do it. There's nothing against it also. How to cover all aspects of the question and from where to collect material not covered in basic books. अच्छा, तो आंसर राइटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। डायरेक्टिव वर्ड्स में हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चन, जैसे कितने पार्ट्स है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसको आइडेंटिफाई करना है। नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन मेंस आर ऑलरेडी आस्क्ड इन PYQs, भले क्वेश्चन का फ्रेमिंग डिफरेंट हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके कीवर्ड्स है, वो रिमेन्स द सेम, यू नो, आपको बस ट्वीक करना है। सो इफ यू आर प्री प्रिपेयर्ड एंड इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट PYQ में क्या क्या पूछा जा सकता है, यू आर ऑलरेडी इन देयर, यू नो, यू कैन ऑलरेडी अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो बेसिक पॉइंट्स तो आप ला ही सकते हैं। बाकी जो कंटेंट जो हमको PYQ में नहीं पूछा जा सकता, या फिर दिस इज कम्प्लीटली न्यू आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक में से कुछ पूछ लिया, there are always certain frameworks that you can use. जैसे इमेजिन जो 2025 का जो पेपर था, ITER का एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोकामैक जो बिल्ड कर रहे हैं, एंड उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पूछा गया था। नाउ इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन, जैसे कितना फंड इंडिया ने दिया या फिर कितने लोगों को इंडिया ने भेजा, दिस एंड ऑल नो वन नोस, है ना। लेकिन आपको पता है इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है। वी नो दैट वी आर टेक्नोलॉजिकली साउंड, वी नो दैट वी कैन हैव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, है ना। वी नो वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स दैट कैन बी गिवन देयर, साइंटिस्ट है हमारे पास who are very knowledgeable, who can contribute in the ITER, प्लस जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें से हमने बहुत कुछ लर्न किया है ना। तो फ्यूशन जो
टेक्नोलॉजीज है वो ही टोकामैक में यूज होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर नॉलेज ट्रांसफर हमने किया होगा, प्लस सम काइंड ऑफ फंडिंग वुड बी देयर, है ना। तो दिस इज अ बेसिक लॉजिक कि यार ये है इंडिया की स्ट्रेंथ, तो इंडिया ने ये सब किया होगा, दिस इज काइंड ऑफ लॉजिक। तो उसमें से आप पॉइंट्स जनरेट करने की कोशिश कीजिए। अगेन, डू नॉट चेस परफेक्शन, आप हर पॉइंट में स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दे सकते, लेकिन जो आपका लॉजिक है दैट हेल्प्स यू, इसी में न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प होता है। आप जनरल ट्रेंड्स एनालाइज कीजिए, यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि सोसाइटी में ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है, ये सब हमारी वीकनेस है, और उसी बेसिस में जेनेरिक पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। उसमें भले ही मार्क्स कम हो, लेकिन आपके ओवरऑल रैंक को वो अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन एड्रेस, ऐसे बाउंसर्स बहुत कम होते हैं, तो बाउंसर्स में थोड़े से इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑल्सो इट्स एक्सेप्टेड। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वुड नेवर से कि सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। इफ यू कैन हैव गुड कंटेंट इन एवरी क्वेश्चन इट्स वेरी गुड, लेकिन डू नॉट ऑब्सेस ओवर इट कि यार इसमें तो मेरे को कंटेंट नहीं है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर जनरल अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट इट देयर, बट उसको प्रेजेंट अच्छे से करना है, कीवर्ड्स में प्रेजेंट करना है, एंड ओनली दैट यू हैव टू वरी अबाउट, राइट। Okay, how to know what to remember and what to forget? Uh, तो I would say कि forget, don't forget if possible, क्योंकि नोट्स तो इम्पोर्टेंट ही होता है यार, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कवर तो करना ही है आपको। लेकिन अगेन मैंने बोला लाइक एनालाइज द PYQs, सर्टेन एरियाज होते हैं, सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसमें यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। जैसे पॉलिटी का उठा लो, फिफ्थ फिफ्थ शेड्यूल हो गया, आप देखते कि हर साल उसमें कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन। तो व्हेन आप पढ़ाई कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द PYQs आप अंडरस्टैंड करिए कि कौन से ये एरियाज है वेर यू कांट टेक अ रिस्क। अगेन, कितने डेप्थ में करना है, अंडरस्टैंड, अगेन PYQ स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, आप अंडरस्टैंड कीजिए कि कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन फैक्ट्स, सर्टेन डेप्थ में आपको जाना है, इफ यू नीड टू रिमेंबर दैट, यू नीड टू रिमेंबर दैट, आपको रिवाइज करते रहना है सेम कंटेंट को अगेन एंड अगेन। बट यू थिंक कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही डेप्थ हो गया, इतना तो पूछा ही नहीं जाता, देन स्किप इट, डू नॉट ऑब्सेस ओवर इट। आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द PYQs, द एरियाज एंड द डेप्थ that is being touched, है ना। तो that's how I used to select कि क्या remember करना है what not. यार someone's asking that I am falling behind professionally seeing my friends work, how did you keep your confidence intact? This is a very important aspect, क्योंकि because UPSC demands 3 to 4 years out of your very valuable and very energetic youth years, right? You think you are unproductive, लेकिन व्हाट आई यूज टू डू इट इस, एक तो उसका लॉजिकल एस्पेक्ट है कि आप हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखिए, हैव अ प्लान बी, हैव अ प्लान सी। आप अपने डोर्स को ओपन रखिए, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे नॉक ऑन दैट, एंड ऑलवेज कीप अ बेस लाइन रेडी विथ यू। डू नॉट फ्लोट कि UPSC में आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे विदाउट हैविंग अ प्लान बी। तो आई थिंक दैट वुड गिव यू अ कॉन्फिडेंस नेचुरली कि यार अब तो बैकअप है, तो आई कैन प्रिपेयर फॉर CSC अभी कॉन्फिडेंटली, है ना, लीव लेकर जो भी। एंड इमोशनली I think it's very important that you keep your loved ones very near and dear ones very close. जैसे आपका फैमिली हो गया, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, तो उनसे कॉन्स्टेंटली इन टच में रहिए। तो दे विल कीप रिमाइंडिंग यू कि आपने व्हाई डिड यू चूज दिस इन द फर्स्ट प्लेस। आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आपको विजन है कंट्री के लिए। तो सबका अपना अपना रीजन होता है कि वाई दे आर ट्राइंग सिविल सर्विस। तो अगर आपका रीजन स्ट्रॉन्ग है, so people who love you will insist on being with you, they will support you throughout the journey. तो ऐसे लोगों को आप अपने पास रखिए, वेल विशर्स को पास रखिए, एंड एवरी डे ट्राई टू रिमेंबर कि वाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू। प्लस वन थिंग दैट आई वुड वांट टू सजेस्ट इज, कभी डोंट मेक UPSC प्रेप योर लाइफ, ऑलवेज हैव अ लाइफ आउटसाइड UPSC। आपको जो हॉबीज है, जो एक्टिविटीज है, आपके फ्रेंड्स के साथ साथ हैंग आउट करना है, समवन माइट बी इंटरेस्टेड इन आर्ट्स और स्पोर्ट्स, तो ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड बी हैव अ गुड मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल स्पेस, सो दैट आप पढ़ाई भी फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कर सके। नेवर मेक योर एंटायर लाइफ अबाउट द प्रेप। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू से।
Someone's asking, what mistakes did you make? एक thing तो one thing that is very important that I consider is I diversified the sources in my first two attempts. I used to read जो magazines होते हैं, कुरुक्षेत्र योजना, ऐसे बहुत सारे magazines होते हैं, and it was I was talking to people and they suggested कि ये सब आपको read करना है and you have to make notes out of it. So I did that in my first attempt, but again, like I said, these are wonderful magazines, not denying that. अगर आप पढ़ सकते हैं, very good. I also tried making notes out of PIB and PRS, लेकिन that again becomes very very tough क्योंकि आप उसको revise नहीं कर पाते हैं. आप only आप पढ़ते रहते हैं, आप highlight करते हैं, short notes बनाते रहते हैं, लेकिन आप उसको revise नहीं कर पाते exam के पहले. So do not diversify the sources. That is one thing. Again, one mistake that I did was I was too prefixed in my strategy with respect to prelims. जैसे मैंने अपने practice tests में I had found out a range of how to attempt the paper. So I had fixed कि मैं इतने number of questions attempt करूँगी, and depending on the exam, वहाँ जाके भी I stuck to that strategy. Sometimes the exam demands you to be completely present in that moment. Common sense भी आपको use करना है. जैसे for example, आई हैड फिक्स 75 क्वेश्चंस फॉर माई सेल्फ. अगर बहुत ईजी पेपर आ गया तो जाहिर सी बात है सब लोग ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, 90 प्लस पर लोग जाएंगे, एंड कट ऑफ विल ऑल्सो गो हाई इफ इट्स एन ईजी पेपर. तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग ओनली 75, it will require very high amount of accuracy on your part in order to crack the exam, है ना. तो according to what your strategy is, according to your understanding, you must be flexible enough to change your strategy on spot. You must always keep it open. You must always trust yourself, trust your gut feeling when it comes to attempting the paper. So these are two mistakes that I think that no one else should do. Someone's asking, do questions from PYQs get repeated? I have seen them getting repeated. I have seen the areas getting repeated. दो question verbatim तो repeat होने के chances बहुत कम है, लेकिन जो areas पूछे जाते हैं वो repeat होते हैं. तो yes, questions areas and topics do get repeated, especially in mains. Mains में तो बहुत repeat होता है. I think बाकी questions most I have covered. तो okay, I'll take one more question quickly. How to improve English for mains exam? Hindi is very bad, but still I'm not able to write correctly right now in second year. English में I think to improve your English there are multiple methods. एक तो you can read newspaper में से ही आपका, if you constantly read the newspaper, that will improve your language, क्योंकि जो keywords हम use करते हैं usually वो newspaper में से ही उठाते हैं ना. तो newspaper reading you can keep it intact. Other than that, there are multiple ways. आप novels अगर आपको पढ़ना पसंद है, read करना पसंद है, तो आप वो उठा सकते हैं. Start with simple novels. Nextly, one thing is that आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं. इंग्लिश मूवीज हेल्प, क्योंकि आप जब सबटाइटल्स में डालकर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, यू पिक अप द स्पीड इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट भी हो, कुछ भी हो, तो दैट हेल्प्स. Other than this, one thing that I think have helped my friends improve their language is that when you read a text, try to summarize it, है ना. जैसे आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया न्यूज़पेपर में, take out a notebook and try to write it in your own words. This is a daily 5 minutes का exercise, लेकिन it can show incremental results in a long term if it is done consistently. So I think these are some techniques that I think might work. I think I revised today, but after a few weeks it becomes blurred again. That's very normal. Do not be stressed about it. After a few weeks, revise it again. That's the only way. You have to give it multiple revisions. This is very important. So I was talking about spaced revision, so you can focus on that. I think, okay. Prabhat, I have already talked about the resources, so you can watch the initial part of the video. Science and technology के लिए, because I am coming from the science background, the strategy for science was purely current affairs. I used to read the newspaper, what are the important areas in science and technology, and I used to prepare accordingly. Again, current affairs magazine है PET 365 में.
There, the Science and Technology ka magazine I used to read. That's the only two sources that I use for science and technology. And then the PYQs में से I identified topics जो constantly पूछते हैं from science and tech, and I worked on that. So these are some things that I did for science. Writing should be good or readable. It must be legible. It must be understandable. That's all. It need not be calligraphic or beautiful. Though a beautiful handwriting can give an edge, क्योंकि जो लोग correct कर रहे हैं वो भी humans हैं. So there is always a subjective bias. लेकिन that's not the main point. It will never kick you out of the race. Not having a good handwriting will never kick you out of the race. So it's not a necessary. I would never say it's necessary, but having a legible handwriting is necessary. So you can do that, right? So I think I'm running out of time also here. It's been 1 hour 7 minutes. Uh, anyway, for UPSC time, they have my Instagram. You can contact me there for any specific doubts regarding prep. So for all of you who are preparing, you're all doing great. So I would like to stop the session now. And thank you for attending. I hope this was helpful. Um, और जो भी insights I shared, it is my personal take on how to prepare for the exam. For you, it might not work or it might work. So if it works, I'll be very glad. Even if you need to tweak the strategy according to you, or you need to do something differently, it's up to you. Always trust your own gut with respect to the prep. So this is good. So I'm going to stop the session now. And I'm very sorry for those who joined late and whose questions I could not take. But you can always reach out to me on Instagram. I would always be available, and Telegram too. So thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you all.